Good morning. Good morning, teacher. So, which type of that all four methods we learn yesterday by using this method in our daily life to separate the substance. First, Handpicking. second, Winnowing. third, Threshing. fourth. Sieving. Okay, handpicking, winnowing, threshing, and sieving. That all four methods every day your mother, yeah, sometimes we also can use, yeah, construction site, yeah, in the factory. They can use this simple method to separate the component from the mixer. Okay, mixer means जो item mix है, जो component mix है उसको separate करते हैं. That is called. Now, this one is over. No. Okay. Bring a sieve and small quantity of flour from home. Okay. Sieve means चांदनी. गुजराती में उसको चांदनी बोलते हैं जो मम्मी फ्लोर सेव करती चालती है. ओके, फ्रॉम होम. और घर से क्या लाना है? फ्लोर मीन्स आटा. टू द क्लास. Sieve the flour to separate any impurities in it. Now make the fine powder of a chalk paste and mix it with the flour. ओके, आपको चॉक का पाउडर बनाना है और आपने जो सीव से फ्लोर को सीव किया है, चारा है, ओके, वो जो आपने फ्लोर चारा है, ओके, सीव किया है, उसके जो फाइन पार्टिकल्स है उसमें आपको क्या मिक्स करना है? चॉक पाउडर. सो कैन इट इज पॉसिबल टू सेपरेट इट बिकॉज बोथ आर द फाइन पार्टिकल्स, व्हाइट इन कलर, सेम साइज ऑफ क्वांटिटी. ओके, उसकी जो मटेरियल है वो साइज में सेम है, बराबर. So, with the flour, can we separate the flour and powder chalk by sieving? No, because both the particles are same size. Okay, sieving is used when components of a mixer have a different size. तो sieving कब use होती है? Component are different size. Okay, like in chana dal or in chana or in wheat or in rice, the sand is mixed. तो सैंड की जो साइज है वही साइज की हम जाली यूज करेंगे, बिकॉज जाली में भी आपको पता है ना साइज आती है ना. तो जो गेहूं है वो नीचे बाहर सीव में निकल जाए ऐसी जाली नहीं यूज करनी. कौन सी साइज की यूज करनी है? जो साइज की सैंड है. तो गेहूं में से हम सैंड को सेपरेट कर सकते हैं उसको सीव करके, बट चॉक पाउडर, ओके, और wheat flour we cannot separate it. So what is the using of sieve? Only sieving is used to when the component of a mixer having a different size. चलो, sedimentation, decantation and filtration. Okay, these are four methods: hand picking, sieving, winnowing and threshing, which we can use in our daily life by easy way. But in science, okay, some of the mixer in science, if we want to, like chemicals, if we want to separate it, तो यहाँ पे scientifically method है, that is called sedimentation, decantation and filterization. ये experiment भी लिखाना है मुझे. चलो, sometime ये sedimentation क्या है, decantation क्या है, इसके definition मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने जा रही हूँ. Sometimes it may not be possible to separate the component of a mixer by winnowing and hand picking. Like if we have to take a glass of water, okay, glass of water, and we have to add the some 1 or 2 or 3 spoon of sand. After that we have to shake the water with a spoon or a strainer. So the sand and water will be mixed. But after sometimes when we have to leave the glass of water, which we have to mix the sand and water, that we have to leave a few minutes, half an hour or 20 minutes. So what happen with the sand and water? After sometimes the sand particles is heavier than the water. So sand particles are settled down. Okay, this process is called sedimentation. Okay, जो component heavy है और separate करने के लिए वो नीचे बैठ जाते हैं, that is called sedimentation. Settle down on the bottom of the water. Okay, जैसे ही आपकी मम्मी ग्लास में मिल्क देती है और शुगर अंदर ऐड करती है तो शुगर पहले नीचे बैठ जाती है. शुगर तो डिसॉल्व है इसीलिए थोड़े टाइम के बाद तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, बट इमीडिएटली इट विल बी सेटल डाउन. ओके, कभी आप दूध पी जाते हो तो नीचे शुगर बच जाती है,
ओके, बिकॉज आपने तुरंत उसको डिजोल्व नहीं होने दिया, आपको स्कूल की देर हो रही थी, व्हाट हैपन, ओके, समटाइम्स तो इट विल बी सेटल्ड डाउन, ओके, but when you have to take a milk and sugar, you have to continue stir it, it will be dissolved within a 5 to 10 minutes or within a few minutes. But sand is not dissolved in water. हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा soluble and insoluble substance. So the substance those who are insoluble do not dissolve in water or a milk. After sometimes it is settled around. This process is called sedimentation. What is deconsation and what is filtering, that I will be explained, but just basic knowledge I will be explained. So sometimes it's not possible to separate the component of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there are many lighter impurities like dust or a soil particles in rice or a pulses. How are such impurities separate from the rice or pulses before cooking? Okay, जो राइस के अंदर डस्ट पार्टिकल्स, ओके, और लाइटर पार्टिकल्स लाइक फार्मर ने खेत में से हार्वेस्ट किया है तो कहीं लीफ आ जाता है, कहीं ड्राई ग्रास आता है, कहीं हस्क आ जाता है, दिस आर लाइटर, बट स्टोन है, सैंड है, मड जो अगर आई है मिक्स है तो वो हेवियर पार्टिकल्स है. तो हाउ वी कैन सेपरेट इट? तो आपकी मम्मी चना वॉश करती है, मूंग वॉश करती है, तो जो लाइटर कंपोनेंट जो इंसेक्ट अंदर मर गए वो प्लॉट हो जाएंगे, और जो चना बिगड़ गया है, ओके, जो चना बिगड़ गया है उसके अंदर से इंसेक्ट ने पूरा दाल खा लिया है, मूंग खा लिया है और उसके ऊपर छिलका है, तो जो चना अच्छी क्वालिटी का नहीं है वो भी प्लॉट होता है. मम्मी वॉश करती है तो आप देखना, ओके. चलो, तो सम ऑफ द सीड दोस हु आर decayed they can be sold. Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add the water, these impurities like dust and soil particles get separated, okay, dust and soil particles get separated. These impurities go into water which become little muddy, okay. You have to observe this. Maybe a mother is washing a methi bhaji or a spinach or any type of rice जो निकालती है, पौवे धोती है, ओके, वॉश करती है, जो बटाका के पौवे होते हैं, ओके, तो मडी वाटर बाहर निकलता है, आपने देखा होगा, है ना, बिकॉज ये जो फार्मर खेत के अंदर क्रॉप्स ग्रो करते हैं तभी वो मिट्टी में ही ग्रो होते हैं, तो समटाइम्स द मड पार्टिकल्स आर स्टक विद द कॉप और अ हस्क एंड मे बी अ व्हाई वी शुड wash all the pulses, rice, okay, तुवर दाल, this all are be washed before cooking. मम्मी कुकर चढ़ाती है मॉर्निंग में दाल और राइस का डब्बे में, ओके, तो रोज वो वॉश करती है. व्हाई? वो तो व्हाइट कलर में है, दाल के अंदर भी ऑयल है, व्हाई वॉश करती है, ओके, बट वॉश करने के टाइम आप देखते हो जो वाटर निकलता है वो वाटर में इम्प्योरिटीज सेपरेट हो जाती है, ओके. व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन द मिक्सर सेटल्ड after water is added to it, the process is called sedimentation. Understand? The heavier component are settled down, okay, and the lighter component are float on the water. So the heavier component, those who are settled down in the water, तो जो रेती है, मिट्टी है, okay, वो वाटर में settle down हो जाएंगे. That is sedimentation. When the water along with the dust is removed, the process is called deconsation. Okay, यहाँ पे क्या लिखा है? When the water falling with the dust is removed, the process is called deconsation. तो ऊपर जो डर्टी वाटर है, ओके, जो वॉश करने के बाद, जैसे राइस वॉश करते हो तो व्हाइट कलर का पानी में थोड़ा डस्ट होता है, तो ये जो सेपरेट कंपोनेंट किया, वाटर सेपरेट हो गया, ओके, हेवियर, लाइक कि मम्मी ने राइस वॉश किया खिचड़ी बनाने के लिए, तो राइस नीचे सेटल डाउन हो गए, ओके, तो वो सेडिमेंटेशन हुआ. बट राइस वॉश करने के बाद जो पानी को सेपरेट किया बेसिन के अंदर, दैट इज डिकेंसेशन. अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेशन, अरे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंसेशन? यस, ओके. चलो, और फिल्टराइजेशन किसको बोलते हैं? यही मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि लाइक एक ग्लास है, ओके, तो ग्लास के अंदर सैंड पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, ओके, और ऊपर क्लीन वाटर आ गया है, ओके, ये वाटर है, ये नीचे सैंड है या राइस है. राइस तो हम यूज करते हैं,
बट सैंड तो हम यूज नहीं करते, सैंड और वाटर को सेपरेट करना है तो वी हैव टू लीव द ग्लास फ्यू मिनट्स. तो द सैंड आर हेवियर देन द वाटर, तो इट विल बी सेटल डाउन. तो जो सैंड सेटल डाउन हुआ दैट इज सेडिमेंटेशन. और ऊपर जो वाटर आया वो हमने क्या किया, ये जो दूसरा ग्लास है वो ग्लास में हमने फिल्टर पेपर रखा. कौन से का, व्हाइट कलर का फिल्टर पेपर आता है, मेरे पास पड़ा हो तो मैं वो यहाँ पे जो वाटर है, ओके, ये जो वाटर है वो प्योर तो नहीं है क्योंकि वो तो रेती वाला पानी है. मे बी all the particles are settled down, although this water we have to put a filter paper, okay, and sieve it, उसको गालते हैं वही पानी को फिल्टर पेपर या कॉटन क्लोथ, ऐसा जो कॉटन दुपट्टा है, ओके, वो ऐसे कॉटन दुपट्टा है प्योर, ओके, आपका हैंड कर्चीफ है व्हाइट, उसको हम ग्लास में रखेंगे और गालेंगे, उसको सीव करेंगे. तो जितने भी पार्टिकल्स ऊपर की लेयर में, एक तो जैसे भी आप गालते हो तो सैंड थोड़ी ऊपर आ सकती है ना, गालते टाइम में भी, तो ये जो पार्टिकल्स है यहाँ पे आ जाएंगे सीव के, और यहाँ पे जो वाटर होगा वो क्लीन वाटर होगा. अभी कोई पार्टिकल्स आने के चांसेस नहीं है बिकॉज वो कॉटन क्लॉथ, ओके, गुजराती में આપણે ગળનું કહીએ, और फिल्टर पेपर से वो पार्टिकल्स अंदर स्टिक हो गए हैं क्लोथ के अंदर. तो यहाँ पे जो वाटर हुआ, ऑब्टेन वाटर हुआ, वो क्लीन है, दैट इज फिल्टराइजेशन. ओके, ये प्रोसेस क्या हुआ, फिल्टराइजेशन. तो सेडिमेंटेशन, डिकैंसेशन एंड फिल्टराइजेशन प्रोसेस आर वर्क टुगेदर व्हेन वी हैव टू सेपरेट सम ऑफ द सब्सटेंस लाइक दिस वे. ओके, चलो. The same particles is used for the separating a mixture of two liquids. A mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water. तो oil easily we can separate. Okay, एक टेस्ट ट्यूब में मैं पानी लूंगी और ऑयल लूंगी. ओके, कल घर से थोड़ा सा ऑयल ले आने का, जो मम्मी खाना बनाती, एक इतनी बॉटल में पानी तो स्कूल में होगा, टेस्ट ट्यूब मेरे पास है. तो वो दोनों लिक्विड है और दोनों लिक्विड को हम कैसे सेपरेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. बताया था ना वो एक्सपेरिमेंट में, बताया था ना आपको. मैंने एक स्टैंड के ऊपर वो ब्यूरेट रखा था, ग्लास में किया था. यस, ओके, दैट तो नो नीड. यस, हनी और दैट तो यू नो वेरी वेल, है ना. ओके, चलो. सो एक ग्लास में या टेस्ट ट्यूब में कांच की जो हमको लेयर दिखे ना, ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना है, कांच का या ग्लास का. ओके, बोथ आर सेम, कांच और ग्लास, हिंदी और हिंदी. ओके, सो बोथ आर सेम. यू हैव टू टेक अ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास मग, और you have to take oil या kerosene or a petrol. Okay, when we have to add the water and oil mixed together and we can shake the test tube very well. Okay, आगे आपको थंब रखना है, नहीं तो टेस्ट ट्यूब है तो जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा. After that you have to leave the test tube few minutes, though the drop of the oil can float on the surface of the water because oil density is less than the water. Because we learn the density of substance are less than the water, they can float on the water. Density means the heavier or a lighter. जो substance पानी से lighter होगा वो float होगा और पानी से heavier होगा वो sink हो जाएगा. That is called density. Okay? तो density is depending on the substance are heavier or a lighter. बराबर? चलो. That I was explained on the first semester. चलो. If mixture of such a two liquid is allowed to stand for some times, उसको रहने देना है आपको. Okay? They form a two separate layer. The component that forms a top of the layer that can be separated by the decantation. Okay? Decantation means आप जब भी ऑयल का लेयर और पानी के लेयर को सेपरेट करते हो तो टेस्ट ट्यूब में जैसे ही, तो ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट ऑयल ड्रॉप होगा, ओके, और उसके बाद वो तो जब सेपरेट करोगे तो साथ में आएगा. तो डिकैंसेशन के लिए जो मेथड है, जैसे एक स्टैंड के ऊपर ब्यूरेट रखना है, नीचे एक कॉक आता है,
ओके, वो मैं कल ब्यूरेट लेके आऊंगी। भले आपको आप ऑयल लेके तो आना, है ना। ऑयल और दूसरा पेट्रोल केरोसिन नहीं मंगवा सकती, ऑयल ही लेके आना। ओके, which oil which your mother is using in the kitchen, એટલું જ લાવજો બાટલીમાં, 5-6 ચમચી જેટલી। ઓકે, એક જણ લઈને આવજો, ડિસાઈડ કરી દેજો કોણ લાવવાનું। चलो, सो ये टेस्ट ट्यूब में है या कप में है, कांच के ग्लास में है जो हम लेमन जूस पीते। तो व्हेन आई विल बी सेपरेट बाय द यूजिंग ऑफ डिकेंसेशन, जैसे राइस को वॉश किया तो राइस नीचे सेटल डाउन हो गया, दैट इज सेडिमेंटेशन। और जो ऊपर पानी मैंने निकाल दिया जो डर्टी, दैट इज डिकेंसेशन। बट ऑयल और वाटर में तो मैं सेपरेट कैसे करूंगी? व्हेन आई विल बी, ओके, यू हैव टू सी द टू लेयर्स कि ऑयल एंड वाटर आर सेपरेटेड। बट व्हेन आई विल रिमूव द ऑयल, मुझे दोनों को अलग अलग कप में लेना है। व्हाट आई विल बी डू? व्हेन आई विल बी ऐड दिस टेस्ट ट्यूब ऑयल एंड वाटर, ओके, इन द अनदर टेस्ट ट्यूब, तो वो तो दोनों साथ में आ जाएंगे। वो कोई वाटर नहीं है तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और वाटर वाटर बाहर, वो तो दोनों लिक्विड सब्सटेंस है, एक आया उसके पीछे दूसरा भी आ जाएगा बाहर, है ना। तो उसके लिए एक कांच की टेस्ट ट्यूब आती है, सॉरी ब्यूरेट आती है, और नीचे प्लास्टिक की पाइप आती है और बीच में कॉक है। जैसे ही नीचे वाटर आ जाता है मैं क्या करूंगी? कॉक को बंद कर दूंगी, तो एक वाटर बाहर आ जाएगा और ऑयल किस में रहेगा? ग्लास की ट्यूब में रहेगा। ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट आता है सेपरेट करने का, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ब्यूरेट। व्हाट इट इज कॉल्ड? ब्यूरेट। ओके, वो ब्यूरेट मैं कल लेके आऊंगी और आपको बताऊंगी। ओके, मेरे पास पड़ी है, स्टार्ट हो गए। लेट्स टू अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ये हमने दो लिक्विड कैसे सेपरेट करते हैं, ओके, वो हमने पढ़ा। नाउ लेट्स अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। After preparing a tea, what do you do? To remove the tea leaves, we can use a sieve. Try to decant, help us to little, but do you still get a few leaves in your tea? Okay? चाय रख के, चाय की जो कंटेनर है थोड़ी देर गैस में बंद करके रख देंगे तो tea leaves are settled down. But without using a sieve, if we have to try to take a tea in the cup, although maybe a few particles are there in the cup. If without seeing we can take a tea, ले सकते हैं, बट उसी टाइम क्या होगा? थोड़े टी के पार्टिकल्स तो आएंगे, बराबर, सेटल डाउन होने देंगे। It helps us a little, but do you still get a few leaves in your tea? Yes. Now pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? No. Pour the tea with strainer. Strainer जब भी without using sieving, चाय की गड़नी के बिना जब आप चाय को गालते हो तो पहले आपने क्या किया? चाय को सेटल डाउन होने दिया, टी लीव्स को, और आपने चाय लेने का ट्राई किया तो only a few particles of tea leaves are there in the cup. But when you are taking, again you have to stir. Okay? आपको स्टेर करना है, चाय के पत्ती को हिलाना है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि tea leaves remain in the strainer? No. Yes. Yes or no? Yes. Yes. તમે પાછા એને હલાઈને પાછું મિક્સર બનાવી દીધું છે જે નીચે સેટલ ડાઉન. Yes. So this process is called filterization. Okay? Without seeing sedimentation, and with seeing filtration. Okay? अब क्या करना है? आपको क्या करना है? ये एक्टिविटी में ऐसा बताया है कि आपने टी लीव्स को विदाउट यूजिंग सीविंग से सेटल डाउन होने दिया और आपने कप में टी को ले लिया। तो few particles are there in the cup of a tea leaves. अभी आपने जो कप में टी लिया है, ओके, विदाउट सीइंग जो टी लिया है आपने कप में, उसको क्या करना है? सीव रख के आपको फिल्टर करना है, दैट इज फिल्टराइजेशन. એટલે પેલા જે બહુ બધી ચા આવવાની હતી એની જગ્યાએ some of the particles that are also separated by using a filter, means that is sieve. हमारा फिल्टर क्या है? sieve करनी है. Okay, this process is called filterization. A
रेफरेंस बुक में से सब डेफिनेशन लिखा हुआ है. Which method is separating a tea leaves from the prepared tea a better decantation or a filterization? Filterization. Decantation method अच्छी है कि filterization? Filter. Decantation method may be chances to get some of the leaves mixed with the tree. Okay. Let's now to consider the example of water that we use to all of us at all times. Get a safe water to drink. Sometimes water supply through the tap may be muddy in monsoon season. Okay? monsoon season में जो हमारे टैप में वाटर आता है, ओके, या हमारे टेरेस में से जो टैंक है उसमें से जो हमारे घर पे वाटर आता है वो मानसून सीजन में मडी आता है, बिकॉज मानसून सीजन का मडी वाटर री और टैंक में जाता है, वहां से हम यूज करते हैं. द वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स और रिवर्स मे आल्सो बी मडी, ओके, especially after rain, that I told you just. Let's use to see. We can use some method to separate the remove insoluble impurities like a soil from the water. So students, up to here we can complete our today's lecture. From tomorrow we can continue our activity 5, that how we can separate the mud from the water.